Hello friends and my dear student, welcome to my channel Butterfly Study. Today we are learn or work on English workshop The Red-Headed League Part 1. English workshop. First question is find and write the description of different people गिवन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में जो विभिन्न लोग दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 79 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वाई वाज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड-हेडेड पीपल? फ्लीट स्ट्रीट पूरा लाल बाल वालों से क्यों भर गया था? उसका उत्तर इस प्रकार से आंसर, as per the advertisement, red-headed person required for the job, so Fleet Street full of the red-headed people. Second question on page number 79, who was well suited for the job? Answer, Mr. Wilson was well suited for the job. Third question is, why did Mr. Wilson accept the job? Answer, because the pay was very good and the work was light. Fourth question, would you like to do such a job? Why? Answer 1. इसका तो उत्तर हम दे सकते हैं, yes I like such a job because the pay is very good. No, I don't like to do such a job because it has no creativity. पेज नंबर 80 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हम उन प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। What is the difference between dictionary and encyclopedia? Find out. Answer, first, an encyclopedia is a collection of information and about various topics. Second, dictionary contains meaning of collection words. Second question is, suggest a few words that may appear under A after archery in an encyclopedia. Answer, architect, aromatics, asperges, astrologist, astrophysical. ये 2 बार हो गया है, इसको एक ही बार लिखो। वर्कशॉप नंबर 1, हमने पहले ही इसका पढ़ा था क्वेश्चन। ही फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पीपल गिवन इन द स्टोरी। विभिन्न जो व्यक्ति यहाँ आए हैं उनके बारे में यहाँ कुछ जानकारी देना है। तो पहले है मिस्टर विल्सन, ही वॉज पान ब्रोकर, he is an elderly person, he has fairy red hair. Vincent Spaulding, he was an assistant of Mr. Wilson, he was small, he was smart, efficient and worked for only half the normal wages. Third one, Mr. Duncan Ross, representative of a red-headed league, a red-headed man. And fourth, Mr. Ezekiah Hopkins, इनके बारे में एन अमेरिकन मिलेनियर और फाउंडर ऑफ फेमस रेड-हेडेड लीग। अगले व्यक्ति हैं शेरलॉक होम्स, कन्वर्स विद मिस्टर विल्सन, डिटेक्टिव बाय प्रोफेशन, डॉक्टर वाटसन, नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ मिस्टर शेरलॉक होम्स। अगला क्वेश्चन है ये वाला, प्रेजेंट मिस्टर विल्सन स्टोरी एज विथ would be shown a comic strip. You may write the description of the picture in your mother tongue. Write the dialogue in English with the help of the story. Give another example. इसको फ्रेम में करके लिखना है, कॉमिक टाइप फ्रेम करके। फ्रेम 1, मिस्टर विल्सन शॉप, मिस्टर विल्सन की दुकान। स्पॉल्डिंग टू विल्सन, विल यू टेक मी योर असिस्टेंट? आई शैल वर्क फॉर हाफ द वेजेस। Second frame, Mr. Wilson's shop, Spaulding, sir, there's no work here. I shall go down the cellar to develop my photos. Mr. Wilson's shop, Mr. Wilson की दुकान। Frame number 3, Spaulding to Wilson, Spaulding, sir, look at this. Sir, look at
this ad, it is the for red-headed people. ये तो हो गया फ्रेम नंबर 3। इसी प्रकार से फ्रेम नंबर 4, मिस्टर विल्सन शॉप Spalding to Hopkins, the American millionaire founded the Red-Headed League. This is the frame number 4. फिर मिस्टर विल्सन शॉप Spalding to Wilson, it is help for all red-headed people. मिस्टर विल्सन शॉप Spalding to Wilson, urge Mr. Wilson apply for job. Frame number 6 and next frame number 7. Mr. Wilson shop Spalding sir, it will help you, it will additional income. Mr. Wilson shop Spalding sir, may I join you to the interview? Mr. Wilson shop Spalding and Mr. Wilson move to Free Street. ये स्पॉल्डिंग जो है उसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ से हटाना था मिस्टर विल्सन को, तो स्पॉल्डिंग उसको प्रमोट कर रहा है, उसको उकसा रहा है कि जाओ, आपको अदर इनकम हो जाएगा, अतिरिक्त कमाई होगी आपको वहाँ से। फ्रेम नंबर 10, ये यहाँ पे देखिए, फ्लीट स्ट्रीट में विल्सन स्पॉल्डिंग टू मच रश ऑफ रेड-हेडेड सो वी शुड गो बैक। विल्सन जो है स्पॉल्डिंग से कह रहे हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है, तो चलो हम लोग वापस जाते हैं। फ्लीट स्ट्रीट में स्पॉल्डिंग टू विल्सन, स्पॉल्डिंग विल्सन से कहता है यू शुड गो, इट इज़ बेस्ट, यू शुडंट गो। यहाँ पे होना चाहिए शुड नॉट ना, शुडंट गो, यू शुड गो, यू शुड गो, इट इज़ बेस्ट नहीं, वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। हाँ, वो बोल रहा है इंटरव्यू के लिए आपको जाना चाहिए, इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा मौका है। इन द ऑफिस, ये लोग ऑफिस में जब पहुंच गए, रोज टू विल्सन, डंकन रॉस, रॉस है नहीं वो डंकन रॉस, डंकन रॉस विल्सन से क्या बताओ, यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी, आप ही हमारी जो जगह है उसके लिए आप ही ज़्यादा सुटेबल हैं। ये था फ्रेम नंबर 12। फ्रेम नंबर 13, इन द ऑफिस, रोज टू विल्सन, योर ऑफिस टाइम 10 to 2 PM एंड पे वाज फिक्स्ड £4 a week। फिर इन ऑफिस, रॉस टू विल्सन, यू हैव टू कॉपी इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया की कॉपी करना है। इन द ऑफिस स्टार्ट विथ लेटर ए, शुरुआत में पहले दिन उनको लेटर ए से इंसाइक्लोपीडिया लिखने को बोला गया। इसी तरह से हम और फ्रेम करते जा सकते हैं और ज़्यादा लिख सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, दिस इज अ स्टोरी विद इन ए स्टोरी, ये एक कहानी में कहानी सुनाया जा रहा है। सो इट इन द डायग्राम, इसलिए डायग्राम बना के उसको लिखो डॉक्टर वाटसन की स्टोरी एंड मिस्टर विल्सन की स्टोरी। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, बाहर के भाग में और अंदर के भाग में। डॉक्टर वाटसन कॉल्ड हिज फ्रेंड शेरलॉक होम्स। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर वाटसन नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब और देखिए, देयर ही मेट मिस्टर विल्सन एंड हिज फ्रेंड मिस्टर विल्सन टोल्ड स्टोरी। एंड यहाँ पे देखो, डॉक्टर वाटसन लिसन ऑल द स्टोरी, और स्टोरी भी स्टोरी। मिस्टर विल्सन टोल्ड अ प्रैंक played by Red-Headed League and he want to know about mystery। तो इस प्रकार से हमारा ये इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 1 and 2 and 3, उसके बाद है लैंग्वेज स्टडी। ऑक्सिलरी बी एंड हैव नेगेटिव्स, या नेगेटिव के बारे में बताया गया। द ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड हैव फ्रॉम नेगेटिव विदाउट द हेल्प ऑफ डू, बिना डू के प्रयोग के नेगेटिव ऑक्सिलरीज का उपयोग करना है। आई एम नॉट गोइंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, शी वॉजंट स्लीपिंग। आई हैव नॉट सीन इट एंड आई हैवंट सीन इट। हैज नॉट फिनिश्ड, ही हैजंट फिनिश्ड। नोट दैट नॉट इज यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ बी और हैव। Without a form of be or have, the sentence will be incorrect. Main verb be and have. When
be and have are used as main verbs. Do is not needed to form questions and negatives with the main verb. Have auxiliary do can be used. You are hungry. Why is he so sad? Have you pen? यहाँ पर नो का डू का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं इसको. हैव यू गॉट अ पेन? डू यू हैव अ पेन? आई एम नॉट हंग्री. आई हैवंट एनी मनी. आई डोंट हैव मनी. हैव यू टेल? हैव यू विंग? हैव यू ब्रेन? इस प्रकार से हम लैंग्वेज स्टडी में ऑक्सिलरी बी एंड हैव का नेगेटिव का यूज़ कर सकते हैं. तो इस और हमारा अगला जो सेकेंड भाग है इसका रीड रीडिंग सेकेंड पार्ट इंग्लिश वर्कशॉप हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.